Hello students. Now today we will start 2.5 the First World War and the Russian Empire. So let's start. In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, support was thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsarina Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenched stretched along eastern France. In the East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in numbers and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shop were common. स्टूडेंट्स 1914 में दो यूरोपीय जो संगठन थे उनके बीच में वार शुरू हो गया. एक साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे जो कि सेंट्रल की पावर्स थे, केंद्रीय शक्तियां थी, तो दूसरे साइड में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे. इन सभी के पास विशाल बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, बहुत विशाल साम्राज्य थे और यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया. इसलिए इसको फिर प्रथम विश्व युद्ध कहा जाने लगा. स्टार्टिंग में रूसियों का इस युद्ध को काफी समर्थन मिला. जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, जार ने ड्यूमा की जितनी भी पार्टीज थी उनसे सलाह लेना बंद कर दिया और उसको लोग भी उसको अब उसकी जो नीतियां थी उसको नापसंद करने लगे और धीरे धीरे जर्मनी के विरोध में भावनाएं लोगों के मन में आने लगी और इसलिए उन्होंने उसका नाम बदल करके सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया. ज़ारीना अलेक्जेंड्रा जो थी जर्मन की थी और उनके जो सलाहकार थे वो अच्छे नहीं थे, अच्छी सलाह नहीं देते थे. इसके कारण जो राजशाही थी वो और भी अधिक लोगों के अनपॉपुलर हो गई, अलोकप्रिय हो गई. जो ईस्टर्न फ्रंट पर जो लड़ाई चल रही थी वो वेस्टर्न फ्रंट से बहुत ज्यादा चेंज थी, भिन्न थी.
तो जो वेस्टर्न फ्रंट में जो सैनिक थे वो ईस्टर्न फ्रांस की जो सीमा थी वहां पर बनी खाइयां थी और वहां से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ईस्टर्न फ्रंट पर जो सेना थी उसने बहुत ज्यादा दूरी तय कर ली थी और मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक जो थे वो मौत के मुंह में जा चुके थे। तो सेना की हार होने लगी। इससे रूसियों का मनोबल जो था वो टूट गया। 1914 से लेकर 1960 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को बहुत बड़ी हार देखनी पड़ी, बहुत बड़ी पराजय देखनी पड़ी। 1917 तक लगभग 70 लाख पीपल जो थे वो मारे जा चुके थे और इस तरह से जो रूसी सेनाएं थी वो पीछे हटने लगी। तो रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी उन्होंने नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां पर रुक ना सके। फसलों और इमारतों के नष्ट होने से, विनाश होने से लगभग 30 लाख पीपल जो थे वो बेघर हो गए और शरणार्थी बन गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को बहुत ही ज्यादा अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी अब युद्ध से तंग हो चुके थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से फिर जो इंडस्ट्रीज थी उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के जो अपने खुद के उद्योग थे वो तो वैसे ही बहुत कम थे, बाहर से जो हेल्प मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो इस तरह से वहां पर जो है लगभग जर्मनी का कब्जा हो गया। यूरोप के बाकी जो देश थे वो रूस के मुकाबले में दूसरे जो उपकरण होते थे वो ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। रूस के उपकरण अब ज्यादा काम के नहीं रह गए। 1916 तक रेलवे लाइंस भी टूटने लगी और जो अच्छी सेहत के जो सैनिक होते थे उनको युद्ध में भेज दिया जाता था जबरदस्ती, और देश भर में इससे क्या हो गया, मजदूरों की कमी पड़ने लगी। जितने भी अच्छे उनको हष्ट-पुष्ट व्यक्ति नजर आते उनको युद्ध में भेज दिया जाता, तो मजदूरों की कमी पड़ने लगी। छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी ठप हो गई क्योंकि काम के लिए लोग ही नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से सैनिकों का पेट भरने के लिए पूरा अनाज भी वहां भेजा जाने लगा। तो शहरों में रोटी और आटे तक की लाले पड़ गए। 1916 तक में ठंड के समय में रोटियों की जो दुकानें थी वो उन पर अक्सर जो थे वो दंगे होने लगे और इस तरह से रूस में बहुत ज्यादा जो अव्यवस्था फैल चुकी थी युद्ध के कारण। Here is the figure number 7. You can see the Imperial Russian Army came to be known as the Russian Steamroller. It was the largest armed force in the world when this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionary Tsarist power collapsed. तो क्या हुआ कि जो रूसी सेना थी उसे रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। पहले दुनिया में सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन जब लगातार युद्ध होते रहे तो युद्ध से ये सैनिक जो थे परेशान हो गए और उन्होंने जो अपना समर्थन था फिर क्रांतिकारियों को देना शुरू कर दिया और इससे जार की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई, ढह गई। Here is the activity given which is based on your IQ level. So let's see. The year is 1916. You are a general in the Tsar army on the Eastern Front. You are writing a report for the government in Moscow. In your report, suggest what you think the government should do to improve the situation. सोचिए कि आप 1916 के समय में हैं और आप जार की सेना में हैं जो कि ईस्टर्न फ्रंट में वहां पर युद्ध हो रहा है, लड़ाई चल रही है। तो आप मॉस्को सरकार को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं कि युद्ध में क्या क्या चल रहा है। तो अपनी रिपोर्ट में आपको ये बताना है कि स्थिति डल हो चुकी है, सैनिक युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अब वो बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। तो आपको रिपोर्ट में ये बताना है, आपको सुझाव देना है, अपनी राय देना है कि आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करते हैं।